अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो यूपी के मतदाता, अरे जागो रे जागो मोरी बहिनी रे भौजी रे, जागो रे जागो मोरी सखिया रे सगेली रे, जागो रे जागो यूपी के मतदाता। उत्तर प्रदेशर निर्वाचन चतुर्थ पर्यायर भोटग्रहण प्रक्रिया अनुष्ठित हो गल बुधवार। उत्तर प्रदेशत मुठ 7टा पर्यायर निर्वाचन अनुष्ठित होब। ইয়াৰে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ লগে লগে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰৱৰ্তী চৰকাৰ কাৰ। ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক সমীক্ষকসকলে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ বিশ্লেষণ আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰায় প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ স্থিতি মজবুত বুলি দাবী কৰিছে। প্ৰশ্ন হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰৱৰ্তী চৰকাৰ যোগী আদিত্যনাথৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে পুনৰ গঠন কৰিব পাৰিবনে? अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो यूपी के मतदाता, अरे जागो रे जागो मोरी बहिनी रे भौजी रे, जागो रे जागो मोरी सखिया रे सगेली रे, जागो रे जागो यूपी के मतदाता। এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত ব্যাপক তৎপৰতা দেখুৱাইছে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ নেতা অখিলেশ যাদৱে। আনকি অখিলেশে নিৰ্বাচনী বতৰত পিতৃ মুলায়ম সিং যাদৱ আৰু খুৰাক শিৱপাল যাদৱকো একেলগে প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰাইছে। ইয়াৰ জৰিয়তে অখিলেশ যাদৱে এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে যে এইবাৰ যাদৱ পৰিয়াল একেলগে আছে। নাটকীয়ভাৱে এইবাৰ নিৰ্বাচনত সমাজবাদী পাৰ্টি, কংগ্ৰেছ আৰু বহুজন সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মাজত মিত্ৰতা হোৱা নাই। ইয়াৰ লগে লগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাই গৈছে বহুজন সমাজবাদী পাৰ্টিৰ হৈ মায়াবতী। পিছ পৰি থকা নাই কংগ্ৰেছ। বিশেষকৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত ব্যাপক হাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে। প্ৰায়বোৰ ৰেলীতেই প্ৰিয়ংকাই দাবী কৰিছে বিপদৰ সময়ত ৰাইজৰ সৈতে কেৱল কংগ্ৰেছে আছে। এনে অৱস্থাত প্ৰশ্ন হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰৱৰ্তী চৰকাৰখন কোনে গঠন কৰিব? अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो यूपी के मतदाता, अरे जागो रे जागो मोरी बहिनी रे भौजी रे, जागो रे जागो मोरी सखिया रे सगेली रे, जागो रे जागो यूपी के मतदाता। বিৰোধীৰ দাবী এইবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ দখল কৰিব নোৱাৰে বিজেপিয়ে। যোগী আদিত্যনাথৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে চলিছে প্ৰচণ্ড ঢৌ। বিজেপিৰ স্থিতি মুঠেই দুৰ্বল, এই দাবী বিৰোধী পক্ষৰ। বিৰোধী পক্ষই দাবী কৰিছে পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ বিৰোধীৰ স্থিতি যথেষ্ট মজবুত। কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে প্ৰশ্ন হৈছে এইবাৰ বিৰোধীৰ ভোট বিভাজিত হৈছে নেকি? বিশেষকৈ সংখ্যালঘু, দলিত আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ভোট মায়াবতী আৰু অখিলেশ যাদৱৰ দলৰ মাজত যদিহে বিভাজিত হয় তেনেহ'লে বিজেপি লাভান্বিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে। এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনত আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ দলেও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। লগে লগে মুছলমান ভোট বিভাজিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে যোগী আদিত্যনাথে বাৰে বাৰে কৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত ৮০ বনাম ২০ৰ মাজত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। ২০ৰ কথা কৈ মুছলমান সমাজলৈ আঙুলি টোৱাইছে যোগী আদিত্যনাথে। এনে অৱস্থাত উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰৱৰ্তী চৰকাৰ কাৰ হ'ব তাক লৈ জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈ গৈছে। अभी तक जो 4 फेज़ हुए हैं, जनता ने आके अपना मतदान किया है। सकारात्मक बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एक लहर चल रही है इस समय आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ। एक और बात यहाँ साबित हुई है जो मुझे लगता है केवल उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नहीं लेकिन पूरे देश की जनता के लिए है। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होना चाहिए? पूरे चुनाव के दौरान आरएसएस, बीजेपी ने पूरे तौर पर सांप्रदायिक मुद्दा को सामने रखकर विभाजन वाले भाषणें दिए हैं। এয়া বুধবাৰৰ দৃশ্য। বিভিন্ন পুলিং বুথত এইদৰে ব্যাপক হাৰত ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। কিন্তু ভোটাধিকাৰৰ মন কি সেই কথা এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। উত্তৰ প্ৰদেশত 7টা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ বুধবাৰে সমাপ্ত হৈছে। শাসকীয় তথা বিৰোধী পক্ষৰ দাবী এই পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ স্থিতি মজবুত। বুধবাৰে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈ থকা সময়তেই নাটকীয়ভাৱে সন্মুখলৈ আহিছে বহুজন সমাজবাদী পাৰ্টিৰ নেত্ৰী মায়াবতী।
মায়াবতী এটা সময়ৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল। এইবাৰ মায়াবতীয়ে দাবী কৰিছে এইবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ জনতাই মায়াবতীৰ দলৰ সপক্ষে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। বিজেপিৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হৈ এই ভোটাৰে এইবাৰ মায়াবতীৰ নেতৃত্বত পুনৰ উত্তৰ প্ৰদেশত চৰকাৰ হোৱাটো বিচাৰিছে। तो वक्त ही बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना पानी में है। समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि गठबंधन जो है बहुमत से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है, सपा भी दावा कर रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनके दावे धरे के धरे रह जाएं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब रिजल्ट आएगा तो बहुजन समाज पार्टी सन 2007 की तरह पूर्ण बहुमत के आधार पर अपनी सरकार जरूर बनाएगी। मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। लगता है कितनी सीटों पर कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर उनके साथ जा रहा है और 400 सीट जीत रहा है 403 में से। तो ये इसकी ज़्यादातर सही रिपोर्ट तो आप क्षेत्र में जाकर मुसलमानों से पूछ सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव में खास तौर से जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो वो इनकी समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं। मुसलमानों का ज़्यादातर ये मानना है कि 5 साल तक हमने इनकी सेवा की, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो जो वो तैयारी कर रहे थे तो वहाँ दूसरे लोगों को टिकट दे दिया। तो मुस्लिम समाज तो उनसे वैसे ही नाराज है, तो उनको वोट कैसे दे देगा। ये जो अभी तो सपा जो सरकार बनाने के सपने देख रही है, इनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है तो सपा सरकार के दौरान सबसे ज़्यादा उत्पीड़न दलितों का हुआ है, पिछड़ों का हुआ है, और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ गरीबों का हुआ है। और अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज का भी उत्पीड़न बड़े पैमाने पर हुआ है। तो अभी तो वो सब केवल बयानबाजी से ही उनके जो फॉलोवर्स हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके दिमाग खराब हो गए। अभी तो वो सत्ता में भी नहीं आए हैं और आने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि जनता यूपी की सब देख रही है कि सपा जब पावर में रही है तो यहाँ गुंडागर्दी, माफियागर्दी, जुल्म जाति और गरीब लोगों के ऊपर उत्पीड़न चरम सीमा पर रहा है। और दंगे भी खूब हुए हैं। मुजफ्फरनगर का कांड इस बात का जीता जागता उदाहरण है। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को तो यूपी की जनता रिजल्ट आने से पहले नकार चुकी है, यूपी की जनता, क्योंकि उनको मालूम है कि सपा शासन का मतलब है गुंडा राज, माफिया राज। ये मालूम है यूपी की जनता को। तो ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। কিন্তু পিছ পৰি থকা নাই অখিলেশ যাদৱ। অখিলেশ যাদৱ এইবাৰ যথেষ্ট আশাবাদী। অখিলেশৰ ৰাজনৈতিক সভাসমূহত যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম হৈছে। অখিলেশ যাদৱৰ দলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যোগী আদিত্যনাথৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত কোনো উন্নয়নমূলক কাম কৰিব পৰা নাই। সেয়েহে বাৰে বাৰে হিজাব তথা হিন্দু মুছলমানৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে। গতিকে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰৱৰ্তী চৰকাৰ সমাজবাদী পাৰ্টিৰ হ'ব বুলি দাবী কৰে অখিলেশে। भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है जनता के अंदर उनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है और इसीलिए उनके बयान बदल रहे हैं। आखिरकार बीजेपी को बताना चाहिए कि 5 साल में क्या किया है। झूठ बोलने से क्या होगा। ये सरसों के खेत खड़े हैं पीछे, आप सरसों का तेल नहीं बिकवा रहे हैं। आप अपने उद्योगपति मित्र के कंपनी को फ़ायदा कैसे हो, रिफाइंड तेल उसका बाज़ार में कैसे आए, उसकी मदद आप कानून से कर रहे हैं, पॉलिसी से कर रहे हैं। आप सरसों का तेल स्वस्थ है ज़्यादा कि रिफाइंड तेल जो मलेशिया से आकर के और मलेशिया की इकोनॉमी को, इंडोनेशिया की इकोनॉमी को आप फ़ायदा पहुंचा रहे हो, और हमारे आप किसानों का सरसों नहीं खरीद रहे। समाजवादी पार्टी हर चरण में आगे जा रही है। चौथे चरण में ही 2 शतक लगा देगी और जाते जाते 7वें चरण में आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे। নিৰ্বাচনত ঘনে ঘনে ৰণকৌশল সলনি কৰিছে বিজেপিয়ে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ উন্নতি বিজেপিৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ অংশ। হিজাব বিতৰ্কই স্থান পাইছে বিজেপিৰ প্ৰচাৰত। ঘনে ঘনে বিজেপিয়ে আক্ৰমণ কৰিছে সমাজবাদী পাৰ্টি। সমাজবাদী পাৰ্টিৰ প্ৰতীক চিহ্ন চাইকেল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বিস্ফোৰণত ব্যৱহাৰ কৰে বুলি মোদীৰ অভিযোগ। ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৪ৰ্থ পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণো সমাপ্ত হৈছে।
বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তুলনাত চতুৰ্থ পৰ্যায়তো কিছু পৰিমাণে কম ভোট পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে ইভিএম মেচিনত আবদ্ধ হৈ পৰিছে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ 624 গৰাকী ভোটাৰৰ ভাগ্য। গতিকে অহা 10 মাৰ্চত গম পোৱা যাব যে এই বিধানসভা নিৰ্বাচনত 2022ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কোনটো দলে বা কোনটো দলক পক্ষে জনতাই দিয়ে জনাদেশ। উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিৰ স্থিতি দুৰ্বল বুলি বিৰোধীয়ে দাবী কৰি থকা সময়তেই বিজেপিয়ে দাবী কৰে আচলতে জনতাই পুনৰ যোগী আদিত্যনাথৰ নেতৃত্বত চৰকাৰক ভোট দিবলৈ গৈ আছে। বিগত 5টা বছৰত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যোগী আদিত্যনাথৰ নেতৃত্বত চৰকাৰে। अच्छा काम किया है और ये जो चौथा चरण है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बेहतर है और आप देखेंगे सभी की सभी सीटें हम जीत रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। बीजेपी की प्रचंड लहर चल रही है, कानून का राज स्थापित हुआ है, गरीब आदमी को जीवन जीने लायक स्तर उसका बढ़ा है और लोग महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है एक अच्छी सरकार, स्थायी सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त और कानून व्यवस्था युक्त सरकार दे सकती है। आपकी पिछली पार्टियों को तो लोग हंसी में ही लेते हैं, मजाक में ही लेते हैं, कोई गंभीरता से लेता नहीं। वो दावा तो 400 सीटें भी पाने का, 400 से ज़्यादा सीटें पाने का भी करते हैं, तो ये खुद ही मजाक अपने दावों का बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा जीतेगी और 300 के ऊपर 350 के आसपास हम लोगों की सीटें होंगी। सपा बसपा कांग्रेस ये 35A और 370 आर्टिकल की तरह ये इतिहास के पन्ने में शामिल हो जाएंगे। এইবাৰ এই মহিলাগৰাকীক মন কৰক। এওঁৰ নাম অদিতি সিং। কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গৰূপে পৰিচিত ৰায়বেৰেলীৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছিল এওঁ। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে অদিতি সিঙে বিজেপিত যোগদান কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গৰূপে পৰিচিত ৰায়বেৰেলীৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে থিয় দিছে অদিতি সিং। বিজেপিৰ দাবী এই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ গুৰুত্বহীন হৈ পৰিছে। কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ ৰায়বেৰেলীত কংগ্ৰেছ দিশহাৰা। कि हमेशा सेफ रखूंगी, सुरक्षित रखूंगी और जिस टाइप के गुंडाराज की कल्पना कर रहे हैं मेरे प्रतिद्वंदी वो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। कांग्रेस का वजूद यहाँ पर संकट में है, आप इसे मानती हैं? आप बार बार कांग्रेस क्यों पूछते हैं? कांग्रेस का यहाँ कुछ नहीं है। सीरियसली आप बाकी पार्टियों के बारे में। प्रियंका गांधी ने यहाँ कैंप किया मैडम, और यहाँ मैडम प्रियंका गांधी ने भी यहाँ कैंप किया था और आप लगातार जो है सक्रिय रही, गाँव गई। वो हर जगह कैंप कर रही है। मेरा क्षेत्र मैं अभी नहीं गाँव जा रही, मैं पूरे 5 साल आप किसी से पूछ लीजिए या मेरी कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल या न्यूज़ क्लिपिंग्स उठा के देख लीजिए। स्टॉप, आई मीन आई वांट टू से दिस टू ऑल मीडिया पीपल, स्टॉप सेइंग कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। यार कांग्रेस का अब कुछ नहीं बाकी है। आप बाकी पार्टियों के बारे में एक बार को पूछ भी लेंगे तो मैं अग्री करूंगी। पिछली बार मेरी सीट पे 2nd नंबर पे बसपा थी, सपा है और भी बहुत सारी पार्टीज हैं। तो ये कांग्रेस का गढ़ कहना बंद करिए। जब से प्रियंका जी आई हैं 2019 में उन्होंने लोकसभा भी लड़ा था, उसके पहले तो फिर भी शायद 2 सीट थी, तो 1 पे रह गई। तो व्हाई यू कॉलिंग इट कांग्रेस कांग्रेस? 10 মাৰ্চত নিৰ্বাচনী ফলাফল স্পষ্টভাৱে ওলাব। ইয়াৰ পিছত নিৰ্ণয় হ'ব প্ৰকৃততে উত্তৰ প্ৰদেশত চৰকাৰ কাৰ। কিন্তু বাস্তৱ সত্যটো হ'ল 2024ৰ দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যদিহে উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিয়ে ক্ষমতাচ্যুত হ'বলগীয়া হয় তেনেহ'লে ভৱিষ্যতে মোদী বিপদত পৰিব, সেই কথা নিশ্চিত। সেই কথাটো বিজেপি নেতৃত্বই ভালকৈ জানে। সেয়েহে উত্তৰ প্ৰদেশক বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি দলে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365।